Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 30 of September Sprint, a series which must have definitely helped you a lot in transforming your scores in your CAT mocks. Because in this series, we taught you a lot of things that would help you to solve questions in a better manner. तो आज इसका 30th क्लास है जो कि लास्ट क्लास है. ऑफ कोर्स आप लोगों को जो लोग इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको बुरा भी लग रहा होगा कि ये सीरीज खत्म हो जाएगी. But we are coming up with a daily drill for CAT. So for the next 50 days, we'll be providing you daily questions to solve on your own. So आज हम मॉडर्न मैथ करेंगे. मॉडर्न मैथ इससे एक दो ही क्वेश्चन आते हैं कैट में, बट अगर आप पहला का कैट का पोर्शन देखो जो पुराना कैट हुआ था तो उसमें काफी क्वेश्चंस आते थे. बट इससे एक दो दो या तीन मैक्स, दो से तीन क्वेश्चन आप इससे एंटिसिपेट कर सकते हो. So do not leave this topic just because ki it is asked in fewer numbers. But as an asset, like हो सकता है कि मॉडर्न मैथ से जो क्वेश्चन आए हैं वो इजी आ गए और आप उन्हें टैकल कर सको. इफ यू आर टारगेटिंग अदर एग्जाम्स लाइक एनमैट, एनमैट में से काफी क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 मिनिमम आते हैं, 5-6 भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं. स्नैप में भी क्वेश्चन आते हैं, जैट में भी क्वेश्चन आते हैं. तो इस टॉपिक को छोड़ो मत, करके जाओ. ठीक है, भले ही बहुत ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है. So this is our class, and if you are new to the channel, please do subscribe to our channel. This series will get over, but we will be coming up with more videos, some revision sessions for CAT and other MBA entrance exams. So this was the schedule. So we are on day 30. Thanks for being with us for the past 29 days and watching this series. And on day 30, we will be concluding this with modern maths. So as I said that this series will end, but our assistance will not end. So we are launching a 50-day streak from tomorrow. Okay, so what you need to do is just follow us on Instagram, and we will post the daily link on our story, right? And you will get access to these content, and like you can download these questions and then solve them. Okay, and it will be something that we will not be giving in a solved manner. It will be just questions and their answers. So answers will be released on the next day so that you have this habit of solving the questions on your own. देखो खाली आप solution देखते हो उससे कोई फायदा नहीं मिलता, राइट? अगर आपको खाली क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाए उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा. बेनिफिट तभी होगा जब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे. और इसीलिए आप एक दिन का टाइम दे रहे हैं कि आपको इंस्टेंट आंसर नहीं मिलेंगे, आप उस पर खुद फाइट करोगे तब जाके आपसे वो सॉल्व होंगे. ठीक है, तो आप इससे ये डाउट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे पूछ सकते हो. अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप डेफिनेटली वहां हमसे पूछ सकते हो. ओके, all right, so let's start this class for today, and try to solve the questions on your own and then look at the solution. So is the first question. It says that the letters of the word Rachit are arranged in all possible ways as listed in the dictionary. What is the rank of the word Rachit? So एक क्वेश्चन टाइप होता है रैंकिंग बेस्ड कि इसमें से आपको बताना है रचित वर्ड का रैंक कौन सा. सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तो वी हैव टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले आप लिख लो कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा. सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लेटर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे. इफ यू टेक ए, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5. 5 letters, there is no repetition, so number of words will be formed will be 120. 120 words ए से फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, अब सेकंड आता है सी में. सी से देख लो 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स और बचते हैं, तो सी से भी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे. Goes with I H. H also we will have 120 words formed, and I also we will have 120 words, right? अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे. कैसे करेंगे, हमें जाना है रचित वर्ड पे, राइट? वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रचित. तो वी कैन नॉट टेक आर ए कंप्लीट, आर कंप्लीटली, बिकॉज आर हम ले लेंगे तो वो लास्ट वर्ड बता देगा, राइट? आर टी आई, लाइक दिस विल बी द, ये हमें लास्ट वर्ड बता देगा अगर हम सारे काउंट कर लेंगे. तो हमें सारे काउंट नहीं करने. वी नीड टू गो टिल द सेकंड लेटर. अगर हम आर ए लेते हैं, आर ए के बाद भी
अगर हम आर और ए ले लेते हैं, सपोज वी हैव टेकन आर एंड ए, तो लास्ट वर्ड आ जाएगा TIHC, ये हमारा लास्ट वर्ड आ जाएगा, हमें लास्ट वर्ड तक नहीं जाना है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट लेटर पे, दैट इज आर ए के बाद हमें लेना पड़ेगा सी, ठीक है, RAC वी टेक। अब RAC के बाद ओके वी नीड टू सी की सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। RAC, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई तक हमने वर्ड ले ली, तो आर से सबसे पहले RAC 3 लेटर्स आएंगे। ओके, नाउ इफ यू सी द फर्स्ट वर्ड दैट विल बी HIT ओनली, असेंडिंग ऑर्डर में यही आ रहा है ना, RACHIT। सो आर से जो पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, आर से जो पहला ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो RACHIT, रचित इज द फर्स्ट वर्ड दैट इज स्टार्टिंग। तो इससे पहले कितने वर्ड्स थे, 480, और ये एक और वर्ड हो गया, सो 481 इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड। ओके, so this is how we find the rank of words. A paper has two sections, section 1 and section 2, each containing 6 questions. A candidate is required to answer 7 questions out of the 12 questions. She is not permitted to attempt more than 5 questions from either group. Find the number of different ways of doing questions. ठीक है, तो दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और दोनों में 6 क्वेश्चंस हैं, और टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और नॉट मोर देन 5 क्वेश्चंस नहीं कर सकते, राइट। शी इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम केस बनाते हैं। एक केस होगा कि यहाँ से 5 कर लिए, सेकेंड सेक्शन से 2 कर लिए, फिर 4 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, और 2 5 हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 1 से आप 2 ही अटेम्प्ट करो, सेक्शन 2 से 5 अटेम्प्ट कर रहे हो। अब इसमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, राइट। वी डू नॉट हैव टू अरेंज, वी हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 6 क्वेश्चंस। तो 6C5 into 6C2, 6C4 into 6C3, और फिर ये वही रिपीट हो जाएगा, 6C3 into 6C4। सो आपको वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये स्वैप होगा, राइट। तो आपको बस ऊपर के दो निकालने, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऊपर की दो वैल्यूज निकालनी है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये सेम है और ये भी सेम है। अब देखो कुछ बेसिक ये चीजें बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर NC 0 होता है, NC 0, या फिर NC 1 वो होता है 1, सॉरी NCN वो होता है 1। अगर आप कोई भी, आपको कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं करना, राइट, या फिर सारे आइटम सेलेक्ट करना, एक ही तरीका है, सारे आइटम पिक कर लो, या फिर कोई भी पिक ही नहीं करो, ठीक है, तो एक वैल्यू होती है। if you have to select one item, or if you have to select n minus 1 items, then it is n ways। अगर मैं यहाँ पे 5 बॉल्स रखता हूँ और मैं कहता हूँ आपको एक बॉल पिक करनी है, तो 5 तरीके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तरीके, राइट। अब क्या है कि अगर मैं कहूंगा कि आपको 4 बॉल पिक करनी है, ठीक है, तो आप इस तरह से सोचो कि 4 बॉल पिक करनी है, मतलब एक पिक नहीं करनी है। तो एक तरीका है कि इसको पिक मत करो, second way is this, third way is this, fourth way is this, fifth way is this, right? So NC1 as NCN minus 1 is N। अब NC2, अगर मैं कहता हूं कि आपको इसमें से 2 पिक करनी है, तो 2 पिक करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि यार कोई भी एक पिक कर लेता हूं। सपोज आपने ए पिक कर ली और आपने सी पिक कर ली, तो पहले के लिए आपके पास 5 चॉइसेस थी, दूसरे के लिए 4 थी, ठीक है। बट हमने कहा ए और सी पिक करनी है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है आप सी और ए पिक कर लो, पहले सी पिक करो फिर बाद में ए पिक करो, राइट। तो क्या हो जाता है, 5 into 4 ways डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हो सकता है आपने ए पहले पिक की, सी पहले बाद में की, एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो n minus 1 by 2। सिमिलरली अगर आपको 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो NC3 होता है आपका n minus 1, n minus 2 by 6, ओके, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। तो वही जो हम NCR का फॉर्मूला लिखते हैं, NCR हम लिखते हैं NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
उसी को हमने रिड्यूस करके ये फॉर्म बना दिया, ठीक है। क्योंकि हमें टिपिकली छोटे नंबर सेलेक्ट करने होते हैं तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 6C5, तो आपको हर बार फॉर्मूला नहीं लिखना, बेसिकली आपको ये समझना है कि आपको हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। N6C5 मतलब आपको 6 में से 5 सेलेक्ट करने, बेसिकली 6 वेज हो जाएंगे। 6C2 विल बी 6 इंटू 5/2, कितना हो जाएगा 15। 6C4 विल बी 6 इंटू 6C4 विल बी 6C2। एक और चीज याद रखो, अगर यहाँ पे NCX है एंड NCY है, बोथ इक्वल है, तो या तो ऐसा हो सकता है x इक्वल टू वाई होगा, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो अगर 6C4 बेसिकली आपको 4 सेलेक्ट करना है, मतलब 2 रिजेक्ट कर लो, इट इज इक्वल टू दिस, तो 15। एंड 6C3 विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 6, 6C3 is n-1 n-2 by 6, so that is equal to 20। ठीक है, तो 90 वेज यहाँ हो गए, 300 वेज यहाँ हो गए, 300 वेज इसमें भी हो जाएंगे और इसमें 90 हो जाएंगे। 390 प्लस 390 780, ठीक है। So 780 ways of answering the questions. Using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a number of 4 different digits is formed. Find how many numbers are exactly divisible by 25। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इसमें टिपिकली आप पे ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं wherein you have to use some divisibility rule or something like that, some criteria based on numbers। तो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स, अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। डिविजिबल बाय 25, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी बाय 25 क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स ये होने चाहिए, so the last 2 digits should be this। Now out of the given digits we can make 25, we can make 75, right? But we cannot make 0, 0 and 50 because 0 is not given, right? So we can make 2 cases, let us make one with 25, another with 75, so 25 and 75। Now if you pick 25, we need to put 2 more digits, okay? And how many digits are available, 1, 2, 3, 4, 5, so 5 choices here। And if you pick any of the digits we will have 4 choices, so total we can make 20 numbers, okay? 20 numbers we can make। Similarly in this case if you make 75, we have 5 choices, 1, 2, 3, 4, 6, तो यहाँ पे 5 choice यहाँ पे हो जाएंगी, एक डिजिट फिल कर लेंगे तो हमारे पास 4 choice बचे, तो 4 into 5 we may have 20 cases here also, ठीक है। तो 20 plus 20 total of 40 such numbers can be formed, okay? तो कई लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, आई नो दैट कैट में नहीं आता है, बट अगर आप बाकी एग्जाम्स दे रहे हो तो डेफिनेटली इसको करके जाना। एनमैट, जैट, स्नैप इन सब में काम आएगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये ऐसा टॉपिक है इसमें बहुत इंटेंस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस करने लगोगे जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो वो मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस। तो एंश्योर दैट यू कवर मॉडरेट, इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या थ्योरी लगा सकते हैं। In how many ways can a cricket team of 11 players be selected from 16 players such that it includes 2 particular players, स्मृति एंड हरमनप्रीत, ठीक है। तो हमें 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना ही करना है, टोटल 16 प्लेयर्स है, ठीक है। अब जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करना ही करना है, तो 2 को हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ 14 प्लेयर्स बचेंगे, और 2 सेलेक्ट हो गए तो हमें 9 प्लेयर्स और सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 14C9। 14C9 को कैसे लिख सकते हैं, 14 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है। जिन लोगों को रिड्यूस करना नहीं आता, देखो इसे लिख लो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। अब क्या होगा, यहाँ से क्या बचेगा, 9, 8, 7 एंड सो ऑन टिल 1, तो ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, 9 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है 14, 13, 11
12, 11 and 10 upon 5 factorial is 120. So 12 into 10 is 120. 1 14 13 into 11. ठीक है. अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज देख लो, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 into 3 2 एंड 2 into 1 2, लास्ट डिजिट 2, एक ही ऑप्शन है, मार्क दैट. ठीक है. तो ये भी आपको विजिलेंस रखनी होती है कि ऑप्शंस किस तरह से दिए. कई बार ऑप्शंस आपका कैलकुलेशन टाइम रिड्यूस कर सकते. Okay. All right. Let's see the next question. It says, how many words can be formed using the letters of the word intermediate such that the vowels and consonants appear at alternate positions? ठीक है. अच्छा, intermediate से word बनाने, vowels and consonants alternate positions में आनी चाहिए. ठीक है. अब इसे कैसे करते हैं? तो पहले हम vowels लिख लेते हैं और consonants लिखते हैं. 1 2. So let's write the vowels. I, E, E, I, A. Yes, these are the vowels. What are the consonants? N, T, R, M, D, T. जब कोई लंबा वर्ड दिया होता है तो उसे श्योरिटी के लिए काउंट कर लो, नंबर ऑफ लेटर्स यही आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6, 6 वॉवल्स हो गए और 6 कॉन्सोनेंट्स. 1 2 3 4 5 6 वॉवल्स 6 कॉन्सोनेंट. ठीक है. अब क्या करना है, इन्हें ऑल्टरनेट अरेंज करना है. ऑल्टरनेट अरेंज कैसे होता है? देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 6. तो ऐसा हो सकता है वॉवल कॉन्सोनेंट ऐसे करके अरेंज हो सकता है, या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है कॉन्सोनेंट वॉवल. सो कॉन्सोनेंट पहले आ गया, फिर वॉवल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल. दो केसेस बनेंगे. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक किसी का हम नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से क्यों करेंगे? या तो वॉवल कॉन्सोनेंट होगा या कॉन्सोनेंट वॉवल होगा. सो 2 इंटू, हम देखो कॉन्सोनेंट्स को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं या वॉवल्स को कितने तरीके से कर सकते हैं. देयर आर 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6. so we can arrange 6 elements in 6 factorial ways. ठीक है. if there are n elements we can arrange them in n factorial ways. फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं और उतना फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में डाल देते हैं. जैसे यहाँ पे t 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. अब सेम करेंगे vowels के लिए. So we have 6 elements, so 6 factorial. Now if you see, E comes 3 times, so 3 factorial, and I appears 2 times, so 2 factorial. So क्या करना होता है, n factorial लिखो divided by the number of time things are repeating. So if one thing is repeating 3 factorial 3 times, so 3 factorial. If another thing is repeating 2 times, 2 factorial. Okay. अब 2 से 2 factorial cancel हो गया. 6 factorial आता है 720. This is 720 and this is 6 into 2. So 12 into 720, that is 12 into 6 is 72, so 60 here. So 0 0 double zeros, 72 into 6, 43200 is the. तो इन सब के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मतलब हो सकता है 1-2 दिन के टाइम लगेगा आपको बेसिक्स कवर करने में. वो कवर कर लो, बेसिक क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, दैट यू कैन इजीली डील विद. देयर आर 10 डिस्टिंक्ट बुक्स इन अ शेल्फ ऑफ अ लाइब्रेरी. In how many ways can a student pick 4 books such that he does not pick 2 consecutive books? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 बुक्स है और स्टूडेंट को 4 बुक्स पिक करनी है. तो ये क्वेश्चन होता है सेपरेशन वाला. अब इसमें क्या करना है कि 4 बुक्स पिक करनी है, 6 नहीं करनी है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द 6 बुक्स दैट ही विल नॉट पिक. 1 2 3 4 5 6, इनसे एक बैरियर बना देता है. ठीक है. ये 6 बुक वो पिक नहीं करेगा. अब 4 बुक करनी है जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए. तो अगर हम ऐसे रखेंगे बुक्स कि वो जो 4 बुक्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी, तो हमें एक गैप बनाना है. तो पहले हमने बैरियर बनाने के लिए 6 बुक्स प्लेस कर दी. अब हमें 4 बुक्स रखनी है. ठीक है. 4 बुक्स, इनमें से कोई भी गैप में रख सकते हो. कितने गैप है? 7 गैप है. वी हैव टू पिक 4 गैप्स, क्योंकि कोई भी आप लोगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा. अगर आप ये दोनों भी ले लोगे, बीच में तो बैरियर आ गया.
ठीक है, अगर आप ये और ये भी लेते हो तो बैरियर 2 आ गए। तो बेसिकली बैरियर तो आ रहा है ना, तो कोई भी आप बुक्स लोगे तो बीच में बैरियर जरूर आ जाएगा। सो वी नीड टू पिक 4 बुक्स आउट ऑफ दीज 7 गैप्स। आंसर हो जाता है 7C4, विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो आप ऐसे कर सकते हो 765 अपॉन 6। 7C4 is 7C3 and NC3 is n factorial into n into n minus 1 into n minus 2 by 6। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या लिखोगे 765 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हो जाएगा 7 into 5 we will get a total of 35 days। 35 days the person can pick the books। ठीक है, all right, let's see the next question. Before that, just to let you know that we have courses for MBA entrance examinations, and if you like our method of teaching and want to prepare in a structured manner, you are more than welcome to enroll in them। And in case you had a great CAT score last year, so you can avail up to 40% discount on our CAT courses and test series. You can mail us your scorecards on this mail ID so that we can let you know that how much discount you are eligible for. Okay, so let's now see the next question. It says that uh, in how many ways can 5 boys and 3 girls be seated in a row such that all girls do not sit together? ठीक है, हमें क्या करना है, 5 boys और 3 girls को बैठाना है, all girls do not sit together। तो देखो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक केस बना लेते हैं, गर्ल्स को साथ में रख लेते हैं और बॉयज को साथ में रख लेते हैं। ओके, सो बॉयज को अलग अलग रखते हैं, बॉयज का बंडल नहीं बनेगा, गर्ल्स का बंडल बन जाएगा। ठीक है, एक ही हो गया कि हमने इसे टुगेदर कर दिया और हमें कह रहे हैं दे शुड नॉट डू नॉट सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें निकालना है ऑल अरेंजमेंट्स माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ऑल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, टोटल 8 लोग हैं। सो ऑल अरेंजमेंट्स आर 8 फैक्टोरियल माइनस, अब 3 गर्ल्स को, ऑल गर्ल्स को टुगेदर करना है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिन्हें टुगेदर करना है उनका एक बंडल मान लो। ठीक है, तो एक बंडल ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स, वी कैन अरेंज देम इन 6 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, 6 चीजें हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगी। आपस में गर्ल्स कितने वेज में अरेंज होंगी, देयर आर 3 गर्ल्स, वी कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर्स की नॉलेज काफी हैंडफुल होगी। ठीक है, अगर आपको फैक्टोरियल वैल्यूज पता है, 40,328 फैक्टोरियल होता है। अगर आपको नहीं पता तो देखो, आपको एटलीस्ट 7 तक आनी चाहिए, 8 तक आती है तो बहुत अच्छी बात है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 6 तक तो एटलीस्ट आनी चाहिए, 7 8 तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात। Okay, so this is 8 factorial, 8 factorial minus 6 factorial into 3 factorial, 6 into 720, that will be 6 into 2 is 12, 1 carries 42, 43. When you subtract, you will get 36000. 36,000 will be our answer. The answer is 36,000. Okay, now here's the next question. It says, at a cabinet meeting, everyone shook hands exactly once with everyone else. Halfway through the meeting, the Prime Minister arrived and shook hands with only a few people. In all, there were 240 handshakes. How many people did the Prime Minister shake hands? अब ये हैंडशेक का कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्बिनेशंस में आता है। तो व्हाट इज हैंडशेक, हैंडशेक हैपेंस व्हेन देयर आर 2 पीपल। अगर 2 लोग होंगे तो एक हैंडशेक हो जाएगा। ठीक है,
So whenever you have to solve the question on handshakes, the number of handshakes is given by NC2. Basically selection of 2 people out of n people. NC2 is the number of handshakes. अगर इसको आप algebraic form में लिखो n minus 1 by 2. ठीक है, अब क्या है कि it is given that people were doing handshakes and the prime minister arrived and he shook hands with some people. ठीक है, तो जो हमारा NC2 है वो 240 से छोटा होगा क्योंकि एक्चुअल जो लोग हैं, जो people, the other people who were present, the number of handshakes is less than 240. When the prime minister handshake is added, that becomes 240. तो ये less than 240 हो गया. अब इसे करना पड़ेगा n minus 1 is less than 408. अब n की वैल्यू टेस्ट करते हैं, राइट. अब देखो हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है. अब कोई ऐसे राउंड ऑफ वैल्यू लो, ठीक है, राउंड ऐसे बीच की वैल्यू लेने से अच्छा राउंड ऑफ वैल्यू लो. लेट्स से 20 ले लेते हैं. तो अगर हम 20 एंड 21 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 420, सॉरी 19, दैट इज 380. तो अभी तो काफी छोटा है. ठीक है, बढ़ा के देखते हैं. अगर इसे 21 और 20 करते हैं तो 420 बनेगा, अभी भी छोटा है. लेट्स ट्राई. अगर हम 21, 22 और 21 लेते हैं, 22 into 21 will be 22 into 21 by 2, that is 11. और वैसे कैलकुलेट कर लो. 21 is 441, 462 एंड 23 into 22 ले लोगे तो ज्यादा आ जाएगा, ये आ जाएगा 506. तो ये क्रॉस हो गया. ठीक है, तो हमें लेना है 22. अभी हम ये भी देखेंगे कि why did we take 22, why didn't we take 20 और less. ठीक है, मतलब 22 ही क्यों लेंगे. So the number of people are 22. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि how many people were present in the party. So 22 people are there. Now 22 people are there in the meeting, right? तो ओरिजिनल हैंडशेक्स कितने होंगे, 22 into 21 by 2, 231 हैंडशेक्स. ठीक है, ये किन लोगों के हैंडशेक है, जो लोग उस मीटिंग में थे. 240 टोटल हैंडशेक्स हैं. सब्ट्रैक्ट कर लो 9. दीज आर द हैंडशेक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो द प्राइम मिनिस्टर shook hands with 9 people. ठीक है, तो 231 तो आपस में हो गए सब लोगों के, 9 लोगों से पीएम ने भी हाथ मिला दिया. ठीक है, सो दैट मेक्स इट 240. नाउ वी विल डिस्कस द थिंग दैट आई सेड कि अगर 22 से हम कम लेते हैं तो क्या होता है, राइट. क्योंकि हमने यहाँ पे लिया वो लेस देन 480 ना, लेस देन 480 तो ये भी लेस देन 480 है, बट हमने इन केसेस को क्यों नहीं लिया. सपोज वी टेक n इज इक्वल टू 21, व्हाट विल हैपन इन दैट केस. अगर हम n इक्वल टू 21 लेते हैं तो हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे, 21 into 20 by 2 which is 210. 210 हैंडशेक्स हो जाएंगे, राइट. और 240 हमारे टोटल हैंडशेक्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के 30 हैंडशेक्स हो जाएंगे. बट पार्टी में तो जो मीटिंग है उसमें सिर्फ 21 ही लोग प्रेजेंट है, राइट. वी आर सेइंग दैट 21 पीपल आर देयर. हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर शेक हैंड्स विद मोर देन 21 पीपल. ठीक है, तो फॉर दैट रीजन वी शुड टेक ओनली द वैल्यू विच इज जस्ट लेस देन द गिवन वैल्यू. ठीक है, तो 480 से जो जस्ट लेस आ रहा है n-1 वो वाला n लोगे, उससे नीचे की वैल्यू नहीं लोगे. ठीक है, तो वी विल हैव द आंसर एज 9 पीपल. तो इस वीडियो में आप अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट देख रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काफी वैरायटी, हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी में है, ऐसा नहीं कि एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं. तो अगर आपने पढ़ा हुआ है चीजों को तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कहीं से इसको कवर कर लो अच्छे से. तो दैट अगर कुछ क्वेश्चन आ गए आप उनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो. In a Euro-American football competition involving some American teams and some European teams, every team had to play exactly one game with every other team. Okay, so there are some European team and some American teams. Every team has to play against every other team, right? And it is given that in 36 games, both the teams were European teams, and in 15 games, both were American teams. So 36 games ऐसे थे जिसमें दोनों यूरोपियन टीम थी और 15 गेम्स में दोनों अमेरिकन टीम्स थी.
We need to find the number of games in which one team was American team and the other team was European team. ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे करना है. Suppose there are X European teams and Y American teams. ठीक है, तो X European teams and Y American teams है. So if you have to select 36 games, both the teams were European teams. So both European teams कैसे होंगी? हमें दो European teams select करनी है, isn't it? So we have to select two teams out of X so that we will get a match between a European team. ये मैच कैसे आता है? अभी आप लोग जैसे अभी अपने एशिया कप देखो, एशिया कप तो बहुत वैसे वियर्ड सा शेड्यूल था, छोटा सा ग्रुप होता है. पर अगर आप कोई बड़ा टूर्नामेंट देते हो जिसमें एक एक ग्रुप में लेटर से 8 टीमें हैं, right? So we say NC2. We have to select two teams that will be a match, right? So XC2 is 36. So XC2 means X into X minus 1 by 2 is 36. X into X minus 1 is 72. So we can say 9 and 8. हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, छोटे नंबर्स से डील करना सीखो, वो आपकी चीजों को फटाफट सॉल्व करेगा. तो 9 यूरोपियन टीम्स हो गई. अब अमेरिकन टीम्स कितनी है? वाई सी टू इज 15. अगर थोड़ा आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें याद ही हो जाएंगी. ठीक है, y इंटू वाई माइनस वन इज 30. y विल बी 6. y 6 हो गया. तो 9 यूरोपियन टीम्स हैं, 6 अमेरिकन टीम्स हैं. ठीक है, अगर हमें बताने नंबर ऑफ गेम्स इन विच देयर इज वन अमेरिकन टीम एंड वन वाज यूरोपियन टीम. ठीक है, तो यूरोपियन टीम 9 है, अमेरिकन टीम 6 है. सो देयर विल बी 54 सच मैचेस. Okay, so 54 matches within European and American teams. Because you have to select one European team. Like you must be thinking यहाँ पे multiply क्यों किया? ऐसे C2 और ये क्यों नहीं लिखा? ऐसे लिख सकते हैं 9C1. You have to select one European team and you have to select one American team. So 9 into 6, 54. Okay, so let's see the next one. The number of ways in which we can choose a committee from 4 men and 6 women so that the committee includes at least 2 men and exactly twice as women as men are. ठीक है, तो ये सिलेक्शन बेस्ड है. इसमें जैसे वही जो हमने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया किया था ना कि एक सेक्शन से इतने क्वेश्चन सेलेक्ट करने, दूसरे से उतने, तो वही सिलेक्शन हमें लगाने. 4 men and 6 women are there. We have to have at least 2 men and twice as many women. तो एक केस होगा कि हम 2 men सेलेक्ट करते हैं और 4 women सेलेक्ट करते हैं. Another case will be we select 3 men and 6 women. Can you have any other case? We cannot select all men. If you select all men, we have to select 8 women. There are only 6 women present. तो ये दो केस हो गए. ठीक है, और तो क्या हो जाएगा? 2 men सेलेक्ट करने कितने में से? 4 men में से. तो 4C2 इंटू 6 women में से 4 सेलेक्ट करनी, 6C4. दिस इज 4C3 इंटू 6C. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब देखो 4C2 होता है आपका 4 इंटू 3/2, दैट इज 6. एंड 6C2 होता है 6 इंटू 5/2. 6C4 इज 6C2, isn't it? n minus 1/2. ये हो जाएगा. ठीक है, 4C3 मतलब आपको 4 वेज में सेलेक्ट कर सकते हो. 4 में से 3 सेलेक्ट करने ना, तो ऐसे सोचो कि हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. ये सोचो 4 में से 3 सेलेक्ट करना है, राइट? 4 में से 3 सेलेक्ट करना है मतलब एक सेलेक्ट नहीं करना है. तो 4 तरीके हैं, ABCD 4 वेज में आप सेलेक्ट नहीं करोगे. और 6 में से 6 करना है तो 1 ही होगा. तो यहाँ पे 90 वेज हो जाएंगे और इस केस में 4 वेज हो जाएंगे. सो वी विल ऐड द केस. आप में से कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता होगा कि ऐड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक प्रिंसिपल होता है, तो उसके बारे में पढ़ लेना आप. और अगर आपने कहीं प्रॉपर प्रिपरेशन की है किसी इंस्टीट्यूट से तो दे मस्ट हैव डेफिनेटली taught this thing, fundamental principle of counting, which states that like if you have x ways of doing something and y ways of doing something and you have to do both things, अगर दोनों चीज करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे यहाँ पे हमें men भी सेलेक्ट करने हैं और women भी सेलेक्ट करनी है. A and B both things have to be done, so we multiply. But where we have A or B,
तब दोनों में से एक चीज ही सेलेक्ट हो सकती है, राइट? या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों चीज एक साथ साइमल्टेनियस नहीं होती, तो वहां पे हम ऐड कर दें 90 वेज एंड 4 more ways, टोटल ऑफ 94. 94 ways you can select the. अब ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आप मतलब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको करने पड़ेंगे, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट करे ये सारे क्वेश्चंस हवा सर के ऊपर से निकलेंगे। ऑल्दो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे खुद से, ठीक है? तो किसी रिलायबल सोर्स से आप इन्हें पढ़ लो, चाहे बुक से पढ़ लो या कोई वीडियो से देख लो, सो दैट लाइक अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में कर सको। इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, पहले होता था काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आते थे इससे, बट अब वैसा नहीं रहा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, तो कर लो। इफ नॉट फॉर कैट बट फॉर अदर एग्जामिनेशंस दिस विल बी हैंडी। ओके, नाउ a few applications. One is number of solutions. So positive integral solutions निकालने of this equation, ठीक है? अब दो तरीके बता देता हूँ, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दोनों को कैसे करते हैं, ठीक है? अगर नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस निकालने होते हैं वो बहुत इजी होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है आपकी वैल्यूज आनी चाहिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड पॉजिटिव इंटीग्रल होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4। तो बेसिकली जीरो इंक्लूड नहीं होगा जब हम पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है? नॉन नेगेटिव का तरीका बताते हैं, फिर पॉजिटिव वाला भी देखेंगे, और फिर एक और क्वेश्चन करेंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। Now, if you have non-negative integers, that is 0, 1, 2, 3, 4 and so on, so what do you need to do is, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत लेमन टाइप का मेथड है, फॉर्मूले होते हैं इसके, वैसे फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले से अच्छा ये मेथड समझो कि नंबर ऑफ कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 4 है, 5 है, बीच में कितने पार्टीशन है, तो दैट इज पार्टीशन मेथड, 4 पार्टीशन है, ठीक है? 4 पार्टीशन, तो क्या करो कि ये 7 है, suppose that is there are x partition and this is y, so the answer is x plus y c, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बेसिकली कितने टोटल कितने होगा, x हो गया आपका 4 और y आपका 7 है, तो 11 c आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 11 c 7 भी ले सकते हो, बात एक ही है, ठीक है? कितना इजी था। अब क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसे कैसे करेंगे, ए बी सी डी है और टोटल है हमें 7, तो पहले सबको 1 1 1 असाइन कर दो, सबको 1 1 1 असाइन कर दिया। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया नॉन नेगेटिव में, कन्वर्ट हो गया, कैसे किया नॉन नेगेटिव में, सबको हमने 1 1 असाइन कर दिया, ठीक है? कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे आपको दिया होगा कि ए की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, बी की 2 हो सकती है, सी की 3 हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन यू विल असाइन। तो नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बना दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू, कैसे टू, हमने सबको 1 1 असाइन कर। अब हमने इनके नॉन नेगेटिव सोल्यूशन निकालने, नॉन नेगेटिव सोल्यूशन क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है? तो 4 प्लस 2 इज 6 एंड सी, और सी 2 जो भी लिखना चाहो एक ही बात है, 6 सी 2 विच इज 15, 15 सोल्यूशंस, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। Now we will solve an application of this. In how many ways can 27 sweets be distributed among 3 children such that each child gets an odd number of sweets? ठीक है, हमें निकालना है कि हर चाइल्ड के पास ऑड नंबर ऑफ स्वीट्स आने चाहिए, टोटल 27 स्वीट्स करनी है 3 चिल्ड्रन में। अब ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, लाइक इफ यू हैव टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, you will say that 2a plus 1, right? Because even is a multiple of 2, odd is a multiple of 2 plus 1. We can write 2a plus 1, 2b plus 1 and 2c plus 1, right? Where a, b, c can be 0 1 2 3 4 and so on, ठीक है? ये हम लिखेंगे,
हमें क्या दिया, टोटल स्वीट्स हैं 27, टोटल 27 आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो, ए 1 2 3 इधर ले जाओ तो 24 हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन। नॉन नेगेटिव क्यों, क्योंकि ए बी सी की वैल्यूज जीरो भी हो सकती हैं। क्यों, अगर हम जीरो रखेंगे तो क्या ये ऑड नंबर नहीं बनेगा, बिकॉज जीरो रख दो तो ये वन बन जाएगा, तो ऑड नंबर जीरो पे भी बन सकता है। सो वी विल हैव टू फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। और नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, दो ऐड हो गए तो 12 प्लस 2 14 सी 2, जस्ट 14 इंटू 13 बाय 2 और 13 इंटू 7 विच इज 91। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कंडीशन बेस्ड भी होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर वे में अगर पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेटली आपको कंडीशन बेस्ड भी सिखा देंगे। बट द थिंग इज वही है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, तो लोग टिपिकली अवॉइड कर देते हैं चैप्टर। बट अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपके पास अभी भी जैसे टाइम है तो आप इसे कवर कर सकते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हार्डली हफ्ता भर लगेगा अच्छे से कवर करने में, और कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट शुड बी गुड इनफ। तो क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी अगर आ गए दैट वुड बी एन एडवांटेज टू यू, राइट, बिकॉज मेनी पीपल वुड नॉट हैव टच दिस टॉपिक। हाँ, अगर आपने देर से प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा इसे करने की। Okay, so we have mock tests for different MBA entrance examinations, including CAT. So you can check out our mocks. The link is given in the description. And if you are preparing for CAT and you had a great score last year, so we can give you up to 40% discount on our CAT courses and test series. Mail us your scorecards on this mail ID to know the discount that you can be given based on your last year's performance. ओके, सब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, उससे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट कर लेते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 4 men and 4 women बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इफ दे हैव टू ऑल्टरनेट द मेन एंड वुमेन। अब इसे कैसे करते हैं, पहले किसी एक को बिठा देते हैं, चलो मैन को बिठा दो या वुमेन को बिठा दो, डज नॉट मैटर। सो व्हेन यू हैव अ सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर में n फैक्टोरियल वेज होता है, सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल वेज होता है, because we can rotate the table, right? So if ever asked like अगर यहाँ पे सिर्फ men होता, right, या सिर्फ women होता, तो if there are 4 people so there will be 3 factorial ways to arrange. So suppose we made the women sit first, the 4 women can be placed in 3 factorial. So women को हमने कितने ways में कर दिया, 3 factorial ways में। अब क्या बचता है, हमें men को alternate करना है, तो यहाँ पे 4 सीट्स ले लो। अब यहाँ पे ये चीज देखने की होती है कि when the table was empty, so we can make the women sit on any 4 seats. हम W1 2 3 4 ऐसे की जगह हम 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते थे। That is why we had n-1 factorial, because we can rotate them. But now some people are already sitting in these chairs. अब जो बाकी chairs हैं वो fixed ही रहेंगी। So there are 4 places. So in 4 places we can make people sit in 4 factorial. So 4 factorial. So 6 into 24, the answer is 140. 144 ways to arrange that. A nursery kid has 5 notebooks to give out to her 5 classmates. Determine the number of ways such that at least one student gets their name tag. ये एक minor concept होता है permutation combination में, which is called derangement. If you have not heard of any of these, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम हर टॉपिक में बस क्वेश्चंस करा रहे हैं, कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, राइट? सो यू कैन read about these concepts from some books, videos, anything, you can use that, right? And in case if you are enrolled in a course, right, so then definitely they must have covered all these. And in our course also we teach all these things, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं कोर्स में, तो ठीक है, क्योंकि उसमें हर चीज हम करा देते हैं। क्योंकि देखो, नहीं कराएंगे किसी टॉपिक से आएगा तो यू विल ब्लेम अस कि नहीं कराया, बट
It's our duty that we will ensure that everything, each and every topic that is has been asked in the past is covered, right? So that like you prepare all things but focus more on other topics. अच्छा, डीरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डीरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कुछ चीजें हैं और सबका एग्जिस्टिंग ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है? लाइक से देयर आर 4 पीपल ए बी सी डी, ये यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं ए की जगह डी को बिठा दूं, यहाँ पे सी को बिठा दूं और ए को बिठा दूं और बी को बिठा दूं, तो ये हमारा एक डीरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है? चेंज ए एग्जिस्टिंग ऑर्डर। अच्छा, चेंज इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी होता है, वैल्यूज भी याद कर सकते हो। फॉर्मूला होता है, लेट अस से इफ यू हैव डिरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स, तो व्हाट यू डू इज n फैक्टोरियल आप बाहर ले लो, ठीक है? आप चाहे उसको कॉमन मतलब अंदर भी ले सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है? तो जितनी वैल्यूज का ले निकालना है। हमें यहाँ पे क्या दिया है कि 5 नोटबुक्स देनी है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज दैट एटलीस्ट वन स्टूडेंट गेट्स देयर नेम टैग। तो इसका मतलब है ऑल केसेस लेंगे, कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माइनस नो वन गेट्स करेक्ट। नो वन गेट्स करेक्ट होता है आपका ये डीरेंजमेंट। दिस इज चेंज इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो ये होता है आपका डीरेंजमेंट कि हर किसी को भी सही नहीं मिलनी चाहिए। अगर सपोज मैं ए बी सी डी को ऐसे लिख दूं, डी बी ए सी, दिस इज नॉट डीरेंजमेंट। व्हाई? बिकॉज बी को तो अपना पोजीशन सही मिल रहा है। तो डीरेंजमेंट का मतलब होता है सारे डिस्प्लेस हो जाने चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ए बी सी, ये डीरेंजमेंट है। तो द वे टू कैलकुलेट डीरेंजमेंट इज दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो कैलकुलेट करता है डीरेंजमेंट ऑफ 5 वैल्यूज। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं ऑल केसेस कितने हो जाएंगे? 120 5 फैक्टोरियल माइनस डीरेंजमेंट ऑफ 5 वैल्यूज। तो 5 वैल्यूज का डीरेंजमेंट आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है? अब वैल्यूज देखते हो सीधे, 120 बाय 2 माइनस 120 बाय 6 प्लस 120 बाय 24 माइनस 120 बाय 120 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है? तो 60 40 45 माइनस 1 44। तो 44 वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें किसी को भी उनकी नोटबुक नहीं मिलेगी, ठीक है? तो वो हम केसेस रिमूव कर देंगे, बैड केसेस। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज हाउ वी गेट इट। अगर ये टॉपिक नहीं किया है तो ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पर अगर किया हुआ है तो आपको ये डूएबल लगेगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी आल्सो। If we talk about CAT, CAT has stopped asking. Like for the last few years, we have not seen a question on probability. However, in other examinations, you can get questions on probability. Especially NMAT में काफी questions आते हैं। NMAT में at least 5-6 questions तो modern math के आ ही जाते हैं, ठीक है? उसमें permutation combination और probability पक्का आती है। Okay, so let's see this question. It says a bag contains 7 red balls, 4 green balls, and 5 yellow balls. What is the probability that 3 balls drawn at random are either green or yellow? तो probability क्या होती है? Favorable cases upon total cases, ठीक है? Favorable cases का मतलब या तो green होने चाहिए, yellow होनी चाहिए। Favorable case का मतलब इसमें क्या हो गया हमारे पास, ये favorable case हो जाएगा, हमें इनमें से पिक करनी है। Favorable case है, we need to pick 3 out of 9, ठीक है? इन 9 में से पिक करनी है, रेड से नहीं करनी। और टोटल आउटकम्स क्या हो गए? पिक 3 balls आउट ऑफ 16। तो टोटल 16 बॉल्स है, राइट? तो उनमें से 3 पिक करनी है, वो टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 9 में से 3 पिक करनी है। क्या हो जाएगा? 9C3 अपॉन 16C3। 9C3 हम लिख सकते हैं 987/6 एंड 16C3 लिख सकते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14/6।
तो upon 6 cancel हो जाएगा, isn't it? 8 into 16 is 2 times, 7 into 14 is 2 times, and 9 and 15 remains. So 9 can be reduced by, this can be reduced to 5, and 9 can be reduced to 3. 3 by 2 into 5 is 20. 3 by 20. Uh, Green or yellow? 9C3 by 16C3, the 987. 15, 14, right? So 2 times 3 by 20 आना चाहिए. What is, I think there is some mistake in this. 3 by 20 will be the right answer. 3 by 20 होना चाहिए था. Because there are total of 16 balls. So the answer will be 3 by 20. Sorry for the mistake over here. A box contains 12 cards with 1 to 12 consecutive numbers. If we take 5 cards at random without replacement from this box, what is the probability that the median of the number selected is 5? ठीक है, median है आपका 5 और 12 cards हैं 1 to 12. तो हमें पूछना है कि probability क्या है कि median 5 आएगा. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू. अगर आप नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हो तो जो सेंट्रल वैल्यू है वो मीडियन होती है. नाउ इफ देयर आर 5 आइटम्स देन द थर्ड वैल्यू इज द मीडियन. ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता है मीडियन. तो सेंट्रल वैल्यू, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ आइटम्स देन देयर इज ओनली वन सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, और इवन नंबर ऑफ आइटम्स में दो सेंट्रल वैल्यूज का एवरेज होता है. सो द थर्ड वैल्यू इज 5. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो हमें 5 पिक करना है और मीडियन वैल्यू का मतलब है कि यहाँ से 2 पिक करनी है और 2 वैल्यूज यहाँ से पिक करनी है. ठीक है, 2 वैल्यूज बड़ी पिक करोगे, 2 पिक छोटी करोगे और 5 को पिक ही करना है. तो यहाँ से 2 पिक करने का तरीका कितने होंगे? देयर आर 4 वैल्यूज, तो 4C2 ways टू पिक. 4 वैल्यूज से 2 पिक करनी है. 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज से हमें 2 पिक करनी. तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम. और 5 तो हमें पिक करना ही करना है, राइट? तो उसका तो एक ही तरीका है पिक करने का. 5 पिक करना ही करना है, देयर इज ओनली वन वे. तो 4C2 एंड 7C2. एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा? व्हाट इज द activity that we are doing? We are selecting 5 values out of 12, isn't it? That's the total outcome, isn't it? So in probability you have a denominator, so denominator is the total outcome. So 12C5. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So 4C2 will be 4 into 3 by 2 6. 7C2 is 7 into 6 by 2, which is 21. And 12C5. 12C5 का ऐसे लिख लो, 12 11 10 9 8, फिर 5 फैक्टोरियल बचेगा, 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल विच इज 120. इसको ये फिगर आउट नहीं हो रहा है 12C5 कैसे लिखेंगे. तो इट इज 12 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, 12 ऐसे हम लिख सकते हैं 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 12 फैक्टोरियल 12 ये अपॉन 5 फैक्टोरियल बचेगा. 5 फैक्टोरियल इज 120. ठीक है, तो थोड़ा सा इसे रिड्यूस कर देते हैं. 120 कैन बी रिड्यूस लाइक दिस. ठीक है, पूरा 120 चला गया. अब 9 into 8 is 72, and we can reduce it to 12 because 6 into 12 is 72. Now 21 can be reduced to 4 and 7. 3 times is 7 and 3 times is 4. तो हमारा आंसर आएगा 7/40. तो इसमें इन टॉपिक्स में थोड़ा आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए so that you can solve these questions fast. Okay, so here's the next question. It says that there are two brothers, A and B, and the probability of A will pass the examination is, probability that A will pass is 3/5 and that B will pass is
5/8, what is the probability that only one will pass the exam? ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आपके कंपाउंड प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इसमें ए पास होगा या फिर बी पास होगा। तो दो केसेस बनेंगे, केस वन ए पास बी फेल, and second case will be A fail and B pass. Now why will we add these probabilities? Because both things cannot happen simultaneously. या तो A पास होगा और B फेल हो रहा है, या फिर B पास होगा, A फेल होगा और B पास हो जाएगा। ठीक है, दो केसेस हैं, इनको ऐड करना है। अब कैसे से करेंगे, देखो A की पास की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है, तो A की फेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। सिमिलरली बी की पास की प्रोबेबिलिटी दी है 5/8, तो बी की फेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो ए पास एंड बी फेल, सो ए पास इज 3/5 and B fail is 3/8 plus A fail is 2/5 and B pass is 5/, तो कितना हो गया 9/40 and plus 10/40, so 9 plus 10, 19/40 is the, so इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। So like again we have covered different kind of problems in this class. A man is known to speak truth 2 out of 3 times. He throws a die and reports that the number obtained is a 4. Find the probability that the number obtained is actually a 4. ठीक है, अब ये क्या होता है, इस टॉपिक को बोलते हैं बेस थ्योरम। एंड इफ यू हैपन टू डू प्रोबेबिलिटी इन योर स्कूल 11th-12th में, जिसने प्रोबेबिलिटी की होगी, दिस थ्योरम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अगर आप इसको सर्च करोगे बेस थ्योरम, और कोई भी आप इंटरनेट में सर्च करोगे, कोई बुक्स में सर्च करोगे, राइट, यू विल गेट अ वेरी बोरिंग वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, पी ए स्लैश बी, राइट, पी बी स्लैश ए, ऐसे करके कुछ दिया जाता है, वो समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ट्री डायग्राम होता है, मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम से करा रहा हूँ क्योंकि वो इजी होता है समझने में। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें दो आउटकम होंगे, फर्स्ट या तो दो चीजें निकलेंगी, एक तो क्या है कि वो ट्रूथ या लाई बोल रहा है और डाइस में क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा डाइस की बात करते हैं। डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, इट इज सेइंग दैट 4 आना चाहिए, वी नीड टू टेल दैट इट इज एक्चुअली अ 4। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, we throw the dice, what is the probability of getting 4? 1/6. What is the probability of not getting 4? That is 5/6. ठीक है, अच्छा कुछ भी आउटकम आया, या तो 4 आएगा या नहीं आएगा, राइट, कुछ भी आउटकम आएगा, पर्सन कैन टेल ट्रूथ और कैन टेल लाई। यहाँ पे ट्रूथ भी हो सकता है या लाई भी हो सकता है। ट्रूथ कितनी बार बोलता है, 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, तो ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/3, लाई की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अगर दूसरा आउटकम भी आएगा तो ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, लाई की 1/3 होगी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो गया 2, देखो डिनोमिनेटर को रिड्यूस मत करना, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2/18, ठीक है, दिस इज 1/18, दिस इज 10/18 एंड वी हैव 5/18। अच्छा इस केस में क्या होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, हमें क्या कंडीशन दी है, द पर्सन he throws a die and report that the number obtained is a 4। उस पर्सन ने डाई फेंका और बोला नंबर 4 है। अब देखो अगर डाइस में 4 आया है और उसने लाई बोला है तो वो नहीं बोलेगा नंबर 4 है, सो वी विल इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज वी ऑलरेडी नो द पर्सन इज टेलिंग दैट देयर इज अ 4। अगर डाइस में 4 नहीं आया और उसने ट्रूथ बोला है तो वो भी नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज द पर्सन हैज सेड दैट इट इज 4, सो वो हमें केस नहीं कंसिडर नहीं करना जिसमें वो 4 नहीं बोलेगा। Now we need to tell that the number obtained is actually a 4। अब actually 4 क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी इसमें देखो जनरल क्या होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं, द डिनोमिनेटर इज ऑल आउटकम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल आउटकम्स नहीं होते, हमारे पार्शियल आउटकम्स होते हैं। पार्शियल आउटकम्स मतलब जैसे द पर्सन हैज ऑलरेडी सेड दैट द नंबर इज 4, तो वो हमें पता है कि वो नंबर 4 बोला है, तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 4 एंड ही इज स्पीकिंग ट्रूथ
upon probability that he says the number is, ठीक है. अब वो 4 किस केसेस में बोलेगा, इन दोनों केसेस में बोलेगा. So probability that he says 4 is 2 by 5, sorry, 2 by 18 plus 5 by 18, which is 7 by 18. 7 by 18 है. और probability that it is 4 and truth. So 4 as well as truth is 2 by 18. 2 by 18 by 7 by 18. So 2, 18, 18 gets cancelled. The answer is 2 by 7. The answer is. So 2 by 7 ways he will tell that this is the truth. Okay, so in 5 by 7, it will happen that 5 by 7 ways, it is not a truth, it is not 4, but he is telling a 4. Okay, so I hope you enjoyed this session, and like if you are unaware of any of the topics discussed over here, please prepare them. ठीक है, it is your choice, completely your choice. मैं किसी को force नहीं करूंगा कि modern math करो. ठीक है, नंबर सिस्टम में हमेशा कहता हूँ कि करा करो, क्योंकि उससे काफी एडवांटेज मिलता है. अब ये कि अगर आप अदर एग्जाम्स दे रहे हो, जैट टारगेट कर रहे हो, एनमैट टारगेट कर रहे हो, उसमें ये मॉडर्न मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. कैट, अगर इफ यू आर टारगेटिंग ओनली कैट, देन आई वुड से कि मॉडर्न मैथ उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो अवॉइड भी कर सकते हो. So in case you are preparing for CAT and are looking and you had a great score last year, we can offer you discount on our CAT courses and test series. Drop your scorecards to this mail ID and we will let you know that how much discount you are eligible for. Okay, so here are some questions for you to answer in the comments of this video. कुछ तीन इसमें permutation combination के हैं, दो probability के हैं. So answer them. Last one is one conditional probability, that Bayes theorem which we discussed. And please answer these questions in the comments of this video. And you can get the PDFs of these sessions on our Telegram group. So please join our Telegram group. And as I said that we are done with the September sprint. So जो हमारा 50 days streak है, वो हमारे कल से स्टार्ट हो जाएगी. तो बस आपको क्या करना है कि हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना. इंस्टाग्राम पे हम डेली स्टोरी पे हम लिंक देंगे, जो डेली डेली देखो एक ही दिन में रिलीज होगी, उसी दिन आपको कलेक्ट करनी है. आप उसको सॉल्व कर सकते हो. सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट डे उसके सॉल्यूशंस आंसर्स भी रिलीज किए जाएंगे. तो इट इज कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड थिंग टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी. डेली डेली प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंटली 50 डेज तक, तो आपको डेफिनेटली उससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा. और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप उनके क्वेश्चंस डिस्कस भी कर सकते हो. तो दिस वॉज इट फॉर द सेप्टेम्बर स्प्रिंट. आई होप ये सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी. तो अगर आपने इनके कोई भी वीडियोस मिस किए तो प्लीज डू वॉच देम. सारे वीडियोस देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स टच हो जाएंगे. देखो 30 डेज में हमने हर चीज को टच करने की कोशिश की. जैसे आज की क्लास में भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हर अलग अलग कॉन्सेप्ट से थे. ठीक है, सो इट वॉज अज्यूमिंग दैट यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ टॉपिक्स, जस्ट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जस्ट टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एंड टीच यू interesting ways to solve questions. Okay, so that's for this class, and thank you all for watching this series. Do recommend it to your juniors, to your colleagues, that to prepare in a no nonsense manner. Okay, just pure teaching, and of course with tricks, tips and concept building. So this series comes to an end. Thanks once again for watching this, and follow us on Instagram for this daily streak thing, so that you get to solve 30 questions per day for the next 50 days. That would build you a solid ground for CAT 2025, and we wish you all the best for CAT.